morning, students. Now, today we are going to discussing the topic equations reducible to a pair of linear equation in two variables. That means we are reducing the given pair of linear equation. आपको पर्टिकुलर एक कोई फॉर्म दिया हुआ होगा, उसको हम रिड्यूस करेंगे. तो कैसे रिड्यूस करेंगे? कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, केवल एग्जांपल्स है. So first of all, move to the example number 17. How we can simplify, solve the pair of equations. तो यहाँ पर वेरिएबल देखो क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना. तो इन इक्वेशंस को कैसे लिखा है? ठीक है, लेट अस राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस एज. कैसे लिख दिया इसको? It is to be written down 2 into 1 by x. लिख सकते हैं इसको plus 3 into 1 by y equals to 13. Then 5 into 1 by x and minus 4 into 1 by y equals to minus 2. This is equation 2. Now what we have to do? हम क्या करेंगे? We are substituting. We have to put. मैं यहीं पे solve कर रहा हूँ इसको. तो हम put करेंगे क्या कि 1 upon x. यहाँ जो लिया है हम वो ले लेते हैं. 1 upon x को क्या सपोज किया है? p और q. तो 1 upon x is to be taken as it is equals to, इसको हम p रखेंगे, and 1 upon y is equals to q. Then equation 1 is reduces to, ये जो equation 1 है, so we have to written down equation 1 will implying that 1 upon x is p, so 2p plus 3q. So this equation is 2p plus 3q equals to 13. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा. इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम सेम वैल्यूज. Then it is 5p minus 4q. This becomes 5p minus of 4q, that is equals to minus of 2. This is our equation number 4. तो इक्वेशन रिड्यूस हो गया हमारा. लास्ट में जब हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ रख देंगे जो भी वैल्यू होगी, फिर उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. तो अब इन दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन 1 and 2. 1 upon x equals to p and 1 upon y equals to q. In equation 1 and 2 we get, this is equation number 3 जो मैंने ऊपर लिखी है, and this is the equation number 4. अब इसको हमको सॉल्व करना है. तो यहाँ सॉल्व नहीं किया है, तो अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. So we are going to simplify these two equations. इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ. एलिमिनेशन से तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट कितना है, 3 है और यहाँ 4 है. और फिर हम तो इसको, इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4 and this equation is multiplied by 3. Then what we are getting? This equation 3 is equals to, 3 is implying that 4 to the कितना हो जाएगा? It is 8p. Then plus 3 4 the 12, plus 3 4 the 12 of q is equals to 13 4 the 52. Write down it is 52. Then equation number 4 becomes, 4 क्या हो जाएगी आपकी? It is multiplied by 3, so 3 5 the 15. It is 15 of p. Then minus of 4 3 the 3 4 the 12, so it is again, it is 12q is equals to minus 3 to the 6, और minus का हम यहाँ पर 6 लिखेंगे. As the coefficient of q are same and of opposite sign, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर ऐड. अब इसको जोड़ देते हैं. ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया. ना 15 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 23p
ये तो हमारा 0 हो गया एंड फाइनली इट इज इक्वल्स टू 52 प्लस का है और आपका 6 माइनस का है, तो 52 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, इट इज 46, this is 46, and then what is the value of p equals to, so p is equals to 46 upon 23, so 23 1 ja 23 and 23 to the 46, so we are getting the value of p is equals to 2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। कहाँ रखें, हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 3, तो 3 क्या हो जाएगा आपका, तो 3 2 पुट करेंगे तो 2 into 2, so this is 2 into and the value of p is 2 and plus it is 3q is equals to कितना है, 13 है, we have to written down 13, then this is gives you 3q is equals to, it is 13 and 2 to the 4, प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा and this is equals to 9, then what about the value of q is equals to, q is equals to 9 by 3, so it is 3 1 ja 1 and 3 3 ja 9, and we are getting this value q is equals to 3, okay, but we want to finding out the value of x and y as, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, as p इक्वल्स टू कितना है, 2 है, this will imply, and what about the p की वैल्यू कितनी है, 1 upon x है, so we have to written down at the place of p is 1 upon x equals to 2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, then we are getting the value of x equals to 1 by 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 by 2। सिमिलरली हियर यहाँ पर व्हाट इज द q, q equals to 3 and the value of q here, q equals to 1 by y, so it is 1 upon y is equals to 3, टेक द रेसिप्रोकल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, आपस के अंदर इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी हमने यही काम किया है, we have to cross multiply, then what we are getting, the value of y is equals to 1 by 3, तो हमारा जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो सॉल्यूशन है हमारे पास x equals to 1 by 2 and the value of y equals to 1 by 3, ये हमारा आंसर होगा। दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो पहले हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन नहीं थी, हमने उसको लीनियर में कन्वर्ट किया एंड देन वापस से लास्ट के अंदर p और q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये इस तरीके से इक्वेशंस को हम रिड्यूस करेंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये है आपके पास x equals to 1 by 2 and the value of y is 1 by 3। तो वेरीफाई करना है हमको कि हमने ये जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं। तो क्या करना है आपको, किसी भी इक्वेशन के अंदर हम पुट कर सकते हैं x equals to 1 by ये वाली, let us suppose we are substituting the value of here, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 1 by 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 upon 1 by 2 एंड प्लस लेफ्ट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एंड दिस इज 3 upon 1 by 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 न्यूमरेटर से कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये 3 भी कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 into 2 और प्लस हो जाएगा 3 into 3, that is equals to 3 into 3 and finally
finally 2 2s are 4 plus 3 3s are 9, that is equals to 13, which is the right hand side of equation. ये वाली ये रहा आपके पास right hand side. In this way we can verify also whether we have to finding out the correct solution or not. So next example, look at solve the following pair of equations by reducing them to pair of linear equations. अब यहाँ पर देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, तो ये है यहाँ पर 1 upon x, it is 5 upon x minus 1 and here it is 6 upon x minus 1. यहाँ है 1 upon y minus 2 and y minus 2. तो ये डिनोमिनेटर के अंदर ये पार्ट आपका सेम है, दिस इज सेम, पहली टर्म में और दूसरी टर्म में क्या सेम है, y minus 2 and y minus 2. So we are supposing 1 upon x minus 1 is equals to p and 1 upon y minus 2 equals to q. तो इन इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 5 into 1 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equals to 2. ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, और इक्वेशन 2 को 6 into 1 upon x minus 1 minus 3 into 1 upon y minus 2 equals to 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and 2. अब पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, यहाँ p और यहाँ q और q. तो इक्वेशन 1 और 2 जो है तो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी आपकी. ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि वी गेट दिस, so we are going to simplifying these equations here. तो चलिए मैं इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ आपको. तो क्या होगा यहाँ पर, इट इज 5p प्लस q माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इस माइनस इस प्लस 2 को मैं इधर ले आया, और फिर दूसरी इक्वेशन है 6p माइनस 3q एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, a1 b1 और c1 क्या है. तो पहली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन, इससे हम फाइंड आउट करते हैं from this one we have to written down a1 equals to 5, b1 equals to, यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 हो जाएगा, और c1 is equals to कितना है, -2. And from this equation what is the value of a2 equals to 6 and b2 equals to -3. And what about the c2 equals to -1. तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो कैसे बताया था मैंने, आप जैसे x लिखेंगे तो y लिखेंगे और 1 लिखेंगे. Then we have to written down the values of a. तो a की वैल्यू को छोड़ देंगे, b1 b2. तो यहाँ से b1 b1 कितना है, b1 की वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -3. c2 कितना है, c2 की वैल्यू है -2 एंड -1. फिर उसके बाद हमने लिख दिया, फिर अब हम लिखेंगे किसकी, B, C और A की वैल्यू कितनी है, 5 and 6. So we have to written down it is 5 and 6. फिर उसके बाद आप कौन सी वैल्यू लिखोगे, we have to written down फिर से A1, ये B1 और B2 की वैल्यू लिखेंगे. तो वो वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो वैल्यू है हमारे पास 1 और -3. मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा के ऐसे लिख देता हूं, ऐसे. सो अंडर x क्या लिखोगे आप, x के नीचे, सो x अपॉन इक्वल्स टू देन y अपॉन इक्वल्स टू एंड 1 अपॉन इक्वल्स टू. तो पहले हम कॉम्बिनेशन लेते हैं इन 4 वैल्यूज का. तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो 1 into -1 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. फिर बीच में माइनस साइन लिखना है, फिर 3 और ये 3 और 2 दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा.
फिर y के नीचे हम ये वाला कॉम्बिनेशन काम में लेंगे, पहले लिखेंगे इसका तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये होगा -5 तो माइनस माइनस तो इसको हम लिख देंगे प्लस का 5। नाउ 1 के नीचे क्या लिखना है आपको 1, ये जो यहाँ पर 1 दिया हुआ है हमको 1 के नीचे हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 3 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस टाइम्स इसको करेंगे तो इट इज माइनस ऑफ 6 हो जाएगा। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगली जो हमारा सॉल्यूशन होगा तो हम ऐसे लिखेंगे x अपॉन कितना हो गया ये -7, दिस इज -7 इज इक्वल्स टू y upon -12 plus 5, it is again -7 is equals to 1 upon -15 and -6, this is minus of 21, minus of 21। अब हमारे पास कितने पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट कंसीडर करेंगे और इसको थर्ड पार्ट। नाउ वन बाय वन वी हैव टू सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। कौन कौन कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको देखो। तो फर्स्ट और सेकंड, पहले हम कॉम्बिनेशन किसका लेते हैं, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड विल गिव्स यू, पहला और तीसरा पार्ट है उससे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए। अच्छा एक काम कर सकते हैं, तीनों में क्या है आपके पास, यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है तो ये माइनस और ये हटा दो, ठीक है। देन इट इज x अपॉन कितना हो गया 7 इक्वल्स टू 1/21, दिस विल इंप्लाइजिंग दैट x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन 21, this is the value of 21 and finally we are getting x equals to 1 by सॉरी मैंने एक गलती की है यहाँ पर, मुझे x नहीं लिखना था, यहाँ y नहीं लिखना था एंड आई हैव टू रिटन डाउन, यहाँ हम लिखेंगे p और यहाँ लिखेंगे हम q। तो ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू आपकी x और y ना होके ये वैल्यूज होंगी, ये p होगी और ये q होगी। सिमिलरली यहाँ हम p लिखेंगे और यहाँ हम q लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ये p नहीं x नहीं होगा, इट इज p एंड तो यहाँ पर p की वैल्यू, तो p कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू p इक्वल्स टू 1/3 एज 7 1 जा 7 and 7 3 जा 21। नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड पार्ट से भी क्या आएगा अपने पास, वही सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ इट इज q अपॉन 7, it is q upon 7 is equals to 1 upon 21, this will give you the value of q equals to again 7 upon 21 is implying that the value of q is equals to 1/3। तो यहाँ पर भी वही हम करेंगे, 7 1 जा 7 and 7 3 जा 21। So you have to look at here, the p and q both have the value 1/3 and 1/3। अब क्या करेंगे, ना p किसके बराबर दिया हुआ है, व्हाट इज p, p इक्वल्स टू है 1 अपॉन x माइनस 1, सो p इक्वल्स टू 1/3, दिस विल गिव यू p किसके लिए हमने रिप्लेस किया था, इसको रिप्लेस किया था हमने x माइनस 1 एंड इट इज 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आर गेटिंग इट इज x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 and finally the value of x is equals to 3 plus 1
and we are getting the value of x is equals to 4. Okay, and what is the value of q? Q is also 1 by 3, and the value of q को की वैल्यू क्या थी, हमने पुट की थी y minus 2, so we have to taking it is y minus 2. तो यहाँ हो जाएगा 1 upon y minus 2 is equals to 1 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकल ले लीजिए, so it is y minus 2, we are getting y minus 2 equals to 3, which is implying that y equals to 3 plus 2, which is the final value of y is equals to 5. ये हमारे पास फाइनल वैल्यू x और y की आ गई. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास? तो सॉल्यूशन होगा हमारा x equals to 4 and y equals to 5. ये आंसर है आपका सॉल्यूशन सेट. ये this becomes the answer. Now look at, मैंने सॉल्व कर दिया है पूरा आपको, and we are getting here as x equals to 4 and y equals to 5 is the required solution of the given pair of equation. अब वेरीफाई करना है तो x equals to 4 और y equals to 5, 1 और 2 में पुट कर दीजिए. We are getting the final answer. So this is all about from my side. ये वाला जो प्रॉब्लम है ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ आपको समझाना होगा. तो we are discussing this example 19 in the next class. Till then, you should also advise to go through with this example, remaining examples of this topic, reduce equation reducible to linear form. Linear में कैसे convert करना और कैसे solve करेंगे. So till then, thank you very much for watching this video solution. Thank you very much.